Hello students, so welcome back again to the next session of transformation. In our previous session we understood what is the difference between change in a sentence and transformation in a sentence. Whenever we are changing the grammatical structure of any particular statement and when we change its meaning also, that is called change of a sentence. But when we are changing a sentence with a different grammatical structure without changing its meaning is called transformation. So this session has been divided in different parts. In our last session we studied how to remove or add to. There are different rules of removing or adding to. 7 rules are there. So if you have not studied till now that part, just go after this part. You can go to my playlist where you can find the first part of transformation. So today we will continue the session with how to change an assertive sentence into interrogative and interrogative sentence into assertive sentence. So without wasting much time, let us start our class Buds of Wisdom. So second part of transformation, interchange of assertive and interrogative statements. So as we know that an assertive sentence has two parts, affirmative and negative. So we will understand means how both the statements of affirmative and negatives are changed into interrogative. First one, replacement of affirmative and interrogative negative. Why I have given it name affirmative and interrogative negative? See, actually I have given this type of sentence a name, magic of removing or adding not. Why we have given such name to this rule? We will understand it with examples. First read these examples, then you will understand why I have given it this name. When you have to change an affirmative sentence, assertive sentence, affirmative and negative, ठीक है, तो affirmative को अब हमको जब interrogative में change करना होगा तो actually में हमें उसे affirmative यानी कि interrogative, simple interrogative में नहीं change करना है, हमें actually interrogative negative में change करना होगा. ऐसा क्यों? देखिए example से समझिए पहले. कालिदास was a great dramatist. कालिदास वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट. ठीक है, इसे हमें चेंज करना है इंटरोगेटिव में, तो हम चेंज करेंगे वॉज कालिदास नॉट अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट. एक्चुअली व्हेन यू हैव टू इंसिस्ट एनीबडी to accept what you are saying, in that condition what we do, we actually show a little bit anger and say our statement in a way that you are insisting somebody. ठीक है, you are forcing somebody to accept what you are saying. ठीक है, so when I am saying was Kalidas not a great dramatist, obviously you will say yes, of course he was. Okay, second one, is aloe vera not a useful plant? Aloe vera is a useful plant. Okay, in the same way see the negative statement. अब इसके बाद क्या होगा, जब आप एक नेगेटिव स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव इनटू इंटरोगेटिव. ठीक है, तो यहां पर जब आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो उसे हमें सिंपल इंटरोगेटिव में चेंज करना होगा. कैसे? विंड इज नॉट ब्लोइंग हार्ड. इज विंड ब्लोइंग हार्ड? Is wind blowing hard? Neha does not take care of her sister. Does Neha take care of her sister? यहाँ पर एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं उनका यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट भी लिखेंगे और पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया है, स्पेशली इंटरोगेटिव में, तो विशेष ध्यान रखना. तो अगर आपने पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाए हैं तो आपका जो सेंटेंस है रॉन्ग हो जाएगा, आपके पूरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है, सिर्फ एक गलती की वजह से. ठीक है, अब इसमें देखिए हमने क्या देखा कि
कालिदास वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, यहाँ पर नॉट नहीं था, लेकिन जब हमने इसको इंटेरोगेटिव में चेंज किया तो वो क्या हुआ, वहां पर नॉट का यूज किया, यानी कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन जब हमने हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव था, यानी कि नॉट ऑलरेडी मौजूद था, तो जब हमने उसको इंटेरोगेटिव में चेंज किया तो वहां से नॉट पूरी तरह से रिमूव हो गया। दैट मीन्स टू से हमने नेगेटिव को सिंपल इंटेरोगेटिव में चेंज किया। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसे सिंपल इंटेरोगेटिव में चेंज करना, अगर आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो उसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। और इसका सबसे इजीएस्ट रूल है या फिर कह सकते हैं पंच लाइन है, वो अपने माइंड में रखिए, तो आपके इंटेरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। इसे आप अपने नोटबुक में बड़े बड़े लेटर्स में लिख करके रख सकते हैं कि नॉट हो तो हटा दो, ना हो तो लगा दो, ठीक है। हो तो हटा दो, ना हो तो लगा दो। तो जब आप एक ये रूल जो है ये दिमाग में रखेंगे तो आपके जो सेंटेंसेस हैं इंटेरोगेटिव टू असर्टिव आपके कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। इसी वजह से हमने इस रूल को नेम दिया है मैजिक ऑफ रिमूविंग और एडिंग नॉट। नेक्स्ट वन, रिप्लेसमेंट ऑफ नो with any or WH family word. Now see, in your assertive sentence, if you are having no, that means अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो उसे आप किस में चेंज करेंगे, नो को चेंज करेंगे एनी में, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस ग्रीडी मैन, इज इट एनी गुड, इज इट एनी गुड टू हेल्प this greedy man, is it any help to help this greedy man? Obviously no, there is no good, okay। अब देखिए जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं जब हम उनको इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स हमारे WH फैमिली में भी चेंज हो सकते हैं ना। तो इसी सेंटेंस को हम what good is it to help this greedy man? What good is it to help this greedy man? ठीक है, तो इसमें भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Then replacement of any or WH family word into no, ठीक है। इसी तरह से जब उसका मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा रूल का कि जब हमारे पास इंटेरोगेटिव में एनी मिले या फिर WH फैमिली से वर्ड मिले तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, नो में चेंज कर देंगे। इज देयर एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम और वेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, whenever you are having every and every, that means to say everyone, everybody, इस तरह से आ जाए, ठीक इसी तरह से no one means no में no one या nobody, इस तरह से सेंटेंस इस तरह से आपके पास वर्ड आते हैं, ठीक है। एवरी का everyone या everybody, तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, who या where में, यानी WH फैमिली से रिलेटेड डिपेंड करता है कि आपका स्टेटमेंट कैसा है। WH फैमिली में चेंज करेंगे या फिर उसको सिंपल हेल्पिंग वर्ब से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों रूल पता होने चाहिए। Everyone likes to earn name and fame. So obviously when you ask the question who does not like to earn name and fame, so obviously your answer will be everyone, है ना। तो हम क्या करेंगे, everyone को किस में चेंज करेंगे, who में। who does not like to, who does not, टेंस का स्पेशल ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेंस का भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर like से तो यहाँ पर लेकिन does का यूज किया तो हमें अब V1 का यूज करना होगा। who does not like
to earn name and fame। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सेंटेंस सही कर दिया फिर लेकिन आपके जो फ्रेमिंग है अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं है तो भी सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम इसको सिंपल हेल्पिंग वर्ब से भी स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं। डस एवरीवन नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क सॉरी इंटरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखिए। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि एवरीवन यानी कि जब हमने उसको हु में चेंज किया यानी कि WH फैमिली में चेंज किया तो ऐसी कंडीशन में एवरीवन या नो वन जो है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब हमने उसको हेल्पिंग वर्ब से चेंज किया तो ऐसी कंडीशन में एवरीवन, नो वन, ये जो भी हमारे प्रोनाउंस हैं इनका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, इनका रिप्लेसमेंट कब होगा? जब हमको उसे WH फैमिली में चेंज करना होगा। ठीक है, इट इज रेनिंग एवरीवेयर, वेयर इज इट नॉट रेनिंग, वेयर इज इट नॉट रेनिंग, और इज इट नॉट raining everywhere। ठीक है, after this in the same way who has seen the wind, that means no one has seen the wind। ओके, नो वन हैज सीन द विंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला है वो हर जगह चल रहा है कि नॉट है तो रिमूव हो गया है, नॉट नहीं है तो ऐड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हु हैज सीन द विंड, यहाँ पर नॉट नहीं है लेकिन इसके अफर्मेटिव असर्टिव में यानी कि जब चेंज किया तो नो का यूज हुआ यानी कि वो नेगेटिव में चेंज हो गया। वेयर कैन गॉड बी फाउंड, कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता था कि कैन गॉड नॉट बी फाउंड, कैन गॉड नॉट बी फाउंड एवरीवेयर। ओके, सो गॉड कैन बी फाउंड एवरीवेयर। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे चेंज करना है। ठीक है, नाउ कम्स द लास्ट वन। If you are having in your assertive sentence, if you are having never, it will be changed either in ever or in when। My name can never be forgotten। Can my name ever be forgotten? Can my name ever be forgotten? Or when can my name be forgotten? When can my name be forgotten? In the same way, we will reciprocal the rule when it will be changed into never। When can the sun be set? The sun can never be set। The sun can never be set। Actually, the sun can never be set। It is only the darkness that actually hides the sun, but in reality, the sun never hides or sets। Okay, so the sun can never be set। Okay, so these are the rules of interrogative, means whenever you have to transfer an assertive sentence into interrogative, how you will transform। Now we are going to do exercise, and with the exercise we will understand the rules in a better way। Okay, okay students, so now let us do the exercise
if once you do the exercise, all the concepts and all the rules will be very clear to you. You can take the screenshot, and when I solve the exercise, then you can watch and match your answers. Okay, and after this exercise you must not forget to do the exercise from your grammar book as well. Okay, क्योंकि sentences आप जितना ज़्यादा करेंगे तभी आपको सारे rules clear होंगे. Okay, so let us start. Everybody knew his plan. Change into interrogative or transform into interrogative. So as we have studied till now that everybody or nobody will be transformed into who. Okay, so everybody knew his plan. Interrogative. Who डिड नॉट. अब देखो हमने क्या समझाया था कि नॉट हो तो हटा दो, नहीं हो तो लगा दो. ये फॉर्मूला को हमेशा माइंड में रखना है. तो यहाँ पर नॉट नहीं है तो इसका मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमें चेंज करना है. सो हु डिड नॉट नो. डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है ना. हु डिड नॉट नो हिज प्लान और हु डिडंट नो हिज प्लान. याद रखिए, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा. अगर क्वेश्चन मार्क नहीं यूज किया आपने तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा. सेकेंड थिंग, बहुत एक्साइटेड नहीं होना है कि एवरीबडी को हु में चेंज कर दिया आपका सेंटेंस ठीक हो गया. टेंस का भी पूरा ध्यान रखना है. अगर आपने टेंस नहीं चेंज किया, मीन्स टेंस का ध्यान नहीं रखा, तो आपका जो पूरा का पूरा सेंटेंस है रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, नॉट नहीं था, हमने यूज करते हुए उसको इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज किया. ओके, नाउ who would like to be called a fool? Who would like to be called a fool? Assertive sentence. Again, who will be changed into everybody or nobody. Okay, or even everybody or nobody or no one also. Okay, so no one. ठीक उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस से भी आप समझे, who would like to be called a fool? Obviously nobody or no one. ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पर नो नहीं है तो हमको, यहाँ पर नो नहीं है तो हमको नो का यूज करना है. नो वन वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल. नो वन वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल. ओके, can you ever defeat me? There is one more thing, you can change the same sentence with helping verb also. Did everybody not know his plan? So if you write in this way, this is also correct. ओके, डिड एवरीबडी. अब यहाँ पर बस क्या होता है कि एवरीबडी को तो हु में चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को बनाते हैं इंटरोगेटिव को, तो वहां पर हमें एवरीबडी और एवरीवन जो भी है हमारा वो सेम टू सेम वही रहेगा और नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद. डिड एवरीबडी नॉट नो हिज प्लान. ओके, कैन यू एवर डिफीट मी. सो एवर is changed into never. You can never defeat me. You can never defeat me. और यही सेंटेंस आपको ऐसे भी मिल सकता था, when can you defeat me. तो अगर आपका आता when can you defeat me, तो हमको पता होना चाहिए कि when भी किस में चेंज होता है, नेवर में चेंज होता है असर्टिव सेंटेंस बनाते समय. यू कैन नेवर डिफीट मी. ठीक है, तो इन दोनों का ही जो सॉल्यूशन है वो सेम होगा. इज योर फ्रेंड नॉट फेथफुल टू यू. असर्टिव. योर फ्रेंड इज फेथफुल टू यू. योर फ्रेंड इज faithful to you. There is no scope for you in this job. So no, we studied that no will be transformed into any. So is there, it will be changed into interrogative. Is there any scope? Is there any scope for you in this job? Is there any scope for you in this job?
The same sentence can be changed with WH family word also. Where is the scope? Where is the scope for you in this job? ओके तो ध्यान से समझ करके नो को, अगर आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एनी में ही चेंज होगा, ठीक है। नो विल बी कन्वर्टेड इन एनी, एनी विल बी चेंज्ड इनटू नो। बट वेयर इज द स्कोप फॉर यू in this job, so we can change it in WH family as well, as we have studied here that no will be transformed into any or WH family word। ओके तो सेंटेंस जो है आपका, स्टेटमेंट जो है उसको आपको ध्यान से रीड करते हुए कौन सा WH फैमिली वर्ड जो है वो वहां पर सही फिट बैठेगा उसके अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। ओके Okay students, so this is for today only. In our next part we will study and continue our session. So meet you soon. Till then, goodbye. Happy learning.